External view of the heart. Human heart is divided into 4 chambers. Upper 2 are known as atria, lower 2 are known as ventricles. Upper 2 chambers, that means they are again divided into 2, left atria and right atrium, and lower 2 are divided into left ventricle and right ventricle. Now, before discussing the function of heart, you must be note 2 important points regarding functioning of heart. यानी आपको जब हार्ट की फंक्शनिंग आप पढ़ेंगे तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट वन, that the upper 2 chambers, that means atria, left or right atria, ये दोनों chambers क्या होते हैं? These are the receiving chambers. यानी पूरी बॉडी से जो ब्लड आता है वो आपके यही 2 चैम्बर्स रिसीव करते हैं यानी लेते हैं, यानी इन्हीं 2 चैम्बर्स के थ्रू हार्ट में ब्लड एंटर करता है. The lower 2 chambers are the ventricles, left ventricle and right ventricle. These 2 chambers are also known as distributing chambers. That means इन्हीं 2 chambers से आपका blood heart से बाहर जाता है. This is the first key point कि upper 2 chambers आपके receiving chambers होते हैं and lower 2 chambers are the distributing chambers. Now the second point to note is that जो left portion है heart का यानी left atrium and left ventricle always having oxygenated blood, यानी आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है. ऑक्सीजन रिच ब्लड ही ये रिसीव करता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड ही ये फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है. यानी लेफ्ट पोर्शन जो होता है हार्ट का, इट इज ऑलवेज हैविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यानी आपका जो राइट पोर्शन है हार्ट का, दैट इज ऑलवेज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है. क्लियर? सो 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए. पहला, upper 2 chambers are the receiving chambers, lower 2 chambers are the distributing chambers. Secondly, left portion of heart, that means left atrium and left ventricle. Left portion of heart is always having oxygenated blood, but right portion of heart, that means right atrium and right ventricle, is always having deoxygenated blood. Clear? So you always have to keep these 2 points in your mind while learning, while reading about the function of heart. Now there are 4 main blood vessels also, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. Exceptions भी मैंने आपको बताया था. First one, pulmonary vein. आपको याद होगा pulmonary vein मैंने आपको बताया था. This is the only vein. That means exception. This is the only vein out of other veins which carries oxygenated blood. आपकी सभी वेन्स में से एक यही वेन ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सिमिलरली, सेकेंड एक्सेप्शन, दैट मीन्स pulmonary artery. This is the only artery out of other arteries which carries deoxygenated blood. तो pulmonary artery एक ऐसी आर्टरी होती है जो बाकी सब आर्टरी से अलग काम करती है. वो क्या अलग करती है? That it carries deoxygenated blood. Now third important vessel, that is aorta. Aorta is the main artery, जो सबसे मेन आर्टरी है, which actually takes the blood from the heart to other body parts. यानी जो आपके हार्ट से सारी बॉडी तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? कौन सी मेन आर्टरी होती है? दैट इज aorta. एंड फोर्थ ब्लड वेसल जो मेन जिसे हम कहते हैं, दैट इज वेना केवा. दिस इज द मेन वेन. जैसे मेन आर्टरी aorta है जो पूरी बॉडी तक ब्लड पहुंचा रही है हार्ट से लेकर, सिमिलरली पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लाने का काम कौन सी मेन वेन करती है? वेना केवा. ओके, सो आपको ये 4 स्पेशल वेसल्स याद रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, पल्मनरी वेन जो हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है और वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड. सेकंड, पल्मनरी आर्टरी जो हार्ट से ब्लड लंग्स तक पहुंचाती है और वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड. थर्ड, aorta
जो आपके हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी तक पहुंचाती है। एंड फोर्थ वेना केवा, जो वापस पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और कहां पहुंचाती है? हार्ट तक। So this is what the external view of the heart. 4 chambers as well as the 4 main vessels. Now let's discuss about heart in detail. So the heart is an organ present in our body that pumps the blood in the blood vessels. Like we have discussed earlier, the third main component of circulatory system is your pumping organ, which is heart. And it is located in the chest cavity. आपकी chest cavity में आपके ribs के अंदर heart protected होता है, soft organ है जिसे आपकी ribs safe रखती है. And heart is roughly the size of your fist. आपकी fist का, आपकी मुट्ठी का जितना size होता है, आपके heart का roughly उतना ही size होता है. And like we have discussed, human heart has 4 chambers. The upper 2 are called as atria and lower 2 are called as ventricles. And the partition between the chambers help to avoid mixing up of oxygen rich and carbon dioxide rich blood. और आपका जो इन चैम्बर्स का पार्टीशन है, मींस लेफ्ट और राइट जो पार्टीशन है, वो पार्टीशन आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होने से रोकता है. I hope you all have understood the structure of heart. Now let's discuss about the functioning of heart. This is what the schematic diagram of circulation. This is what actually the pathway of blood flow. So first of all, like we all know, we require blood for ऑक्सीजन प्रायोरिटी. हमें ब्लड की सबसे ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इवन फॉर अ मिनट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें चाहिए ब्लड से या जो हम लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन. एंड नाउ वी ऑल नो दैट लंग्स इज द ऑर्गन थ्रू विच ऑक्सीजन एंटर्स इनटू आवर ब्लड. और हमारे ब्लड में ये ऑक्सीजन आती कहां से है? लंग्स से. Okay, we all know that lungs is the respiratory organ through which oxygen enters into our blood. And do you remember what carries that oxygen? Yes, hemoglobin, the red pigment present in red blood cells, which actually combines with oxygen and carry it to different body parts. Now the lungs, they actually help oxygen to enter into our blood. Now from lungs, oxygen rich blood, that is oxygenated blood, enters into the heart through pulmonary vein. पल्मनरी वेन क्या करेगी? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी. कहां लेकर आएगी? लेफ्ट एट्रियम. अभी मैंने आपको बताया था ना कि लेफ्ट पार्ट में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड रहता है. सेकेंडली एट्रिया क्या होता है? रिसीविंग चैम्बर. तो रिसीव कौन करेगा इस ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को? लेफ्ट एट्रिया. नाउ फ्रॉम लेफ्ट एट्रिया द ब्लड विल गो टू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल ही डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर होता है. नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल द ब्लड विल गो टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. अब आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड किसे चाहिए? ऑब्वियसली हमारी पूरी बॉडी को. सो थ्रू आरोटा, ये आपकी कौन सी आर्टरी है? जो मेन आर्टरी यहाँ दिखाई हुई रहती है, आरोटा. It takes the blood from the heart to all the body parts. अब पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पहुंच गया है through capillaries. Now the oxygen present in blood will be used by the tissues, will be used by the body. अब आपकी पूरी बॉडी उस ऑक्सीजन को यूज करेगी जो आपके ब्लड में है. And now what kind of blood will be released? That will be deoxygenated. अब आपकी पूरी बॉडी ऑक्सीजन यूज कर लेगी और कैसा ब्लड रिलीज करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नाउ दैट ब्लड विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज अगेन विल बी कलेक्टेड टू द मेन वेन. अब ये कौन सी वेन दिखाई हुई है यहाँ आपको? मेन वेना केवा. तो वेना केवा क्या करेगी? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और हार्ट तक लेकर आएगी. अब हार्ट में कौन सा चैम्बर रिसीव करेगा?
यस, एट्रियम यानी राइट एट्रियम। अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रहता है? राइट पोर्शन में। तो राइट एट्रियम अब आपका क्या करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। नाउ फ्रॉम द राइट एट्रियम ब्लड विल गो टू राइट वेंट्रिकल। अब क्योंकि वेंट्रिकल ही डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है, तो अब वापस कहाँ जाएगा? अब ये कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी अब इस ब्लड में ऑक्सीजन कम है, तो फिर से ऑक्सीजन के लिए ब्लड कहाँ जाएगा? द ब्लड विल गो टू लंग्स अगेन। कौन लेकर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने पढ़ा था ना कि एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो हार्ट से लंग्स तक ब्लड पहुंचाने का काम पल्मोनरी आर्टरी करती है। So this is how blood circulates in our body. Lungs to heart, then heart to body, then body uses the oxygen, and then from body back to heart, and heart to lungs for oxygenation. So this is what we call the schematic function of heart, as well as we also call it double circulation. इसे हम double circulation का नाम भी देते हैं। Why? देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड दो बार सर्कुलेट हो रहा है, एक बार लंग्स से हार्ट, फिर हार्ट से बॉडी, फिर बॉडी से वापस हार्ट, और फिर हार्ट से लंग्स। So this kind of functioning, this kind of blood circulation is known as double circulation. And do you know the importance of this kind of circulation? क्या importance है इसकी? First of all, as we all know, our body is very complex. हमारी human body कितनी बड़ी है as compared to small organisms? तो आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सके, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके, टाइमली मिल सके, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम। अदरवाइज क्या होगा? अगर चैम्बर्स में पार्टीशन ना हो, आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, है ना? सो टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, we have 4 chambers, we have double circulation. This is what the functioning of heart.